Students, today we will do uses of past indefinite tense. I have already done past indefinite tense in a video and that has been uploaded. But students, let us recapture past indefinite tense. This tense denotes an action that was completed in the past. For example, he joined army in 2015. In respect of 2020, 2015 is past. So, for single action, we use past indefinite tense. Now, how to form past indefinite tense? The formation of past indefinite tense is very easy. First of all, we must have the knowledge of two things. One thing is helping verb and another one is verb. In affirmative sentences, sentences with positive statement, we need not any helping verb. We just use first form of the verb. There is no helping verb in affirmative sentences. And in negative and interrogative sentences, the helping verb is did. And as far as verb is concerned, in affirmative sentences, we use second form of the verb, and in negative and interrogative sentences, first form in present form of the verb is used, and in affirmative sentences, past form of verb is used. So students, here I am giving you a very easy way of formation of past indefinite tense. Affirmative sentences, subject, then use of second form of the verb in past form, then object, other words. You can make so many sentences. Just take some verb. For example, I drank 2 cups of tea last night. I met my friend last week. She joined university last year. And similarly, in negative sentences, she did not go to Delhi last week. He did not meet me last night. And interrogative sentences, did you go to Delhi last week? Did you meet your friend last month? Did she join a university in 1990? These are the formation. So one thing more to remember is that adverbs like yesterday, last week, last year, last month, last night, 5 years ago, 10 years ago, 50 years ago, or in 2010, 1947, 1998 mean whatever is before 2020 is past. Okay, in these sentences, in single action that took place in past, these adverbs can be used. Then students, the basic thing that we want to discuss in this PowerPoint presentation is uses of past indefinite tense. हमें past indefinite tense कब use करना है? Number 1 is to denote an action that took place in the past. ये हम अभी भी discuss कर चुके हैं. For example, our team played a match yesterday. He built this house 10 years ago. She took admission in college last year. I celebrated my birthday last month. जो भी एक्शन पास्ट में समाप्त हो गई थी उसके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे. देन स्टूडेंट वी हैव सेकेंड यूज इज टू डिनोट अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट. यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसी हैबिट और कस्टम जो पास्ट में थे अब नहीं है, क्योंकि अगर अब हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. लेकिन जो हैबिट और कस्टम पास्ट में थे अब नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे टू डिनोट अ हैबिट और कस्टम इन द पास्ट. फॉर एग्जांपल, शी वेंट टू टेम्पल डेली. शी वेंट टू टेम्पल डेली व्हेन शी वाज इन द विलेज. अब यहां पर देखिए, अगली क्लॉज को देखिए, व्हेन से आगे वाली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या शो कर रही है? व्हेन शी वाज इन द विलेज. पास्ट की बात कर रहे हैं. शी वेंट टू टेम्पल डेली व्हेन शी वाज इन द विलेज, मतलब जब वो गांव में थी तब जाया करती थी, अब नहीं जाती है, बिकॉज शी इज इन सिटी नाउ. ओके. द हिंदू विडोज कमिटेड सती. सती प्रथा थी, अब सती प्रथा है नहीं. तो उस टाइम जो हिंदू विडोज थी वो सती हुआ करती थी. नाउ
ये जो हमारा कस्टम है ये अब नहीं है। और दूसरा स्टूडेंट जैसे कुछ जगह पर क्या करते थे, मंदिरों में बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। अब वो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया है कि एनिमल्स विल नॉट बी सेक्रीफाइस्ड देयर। सो हम ये बोल सकते हैं इन टेम्पल्स एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड। वो पैसिव में हो गया, लेकिन हम एक्टिव में कैसे करेंगे? सीधा सा सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे? पीपल सेक्रीफाइस्ड एनिमल इन टेम्पल्स। ठीक है, वो अपने आप क्लियर हो गया कि समटाइम्स अगो, अ फ्यू इयर्स बैक। ओके, सो दिस वाज टू डिनोट एन एक्शन। जो तीसरा यूज है वो क्या है? टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम स्टेटेड एज अनदर। ही वर्कड व्हाइल अदर्स स्लेप्ट। यहां पर क्या चल रहा है? दो एक्शंस दी गई हैं, दोनों ही पास्ट में हुई है, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है, जिसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो हम पास्ट कंटिन्यूअस में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली इन पास्ट वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट कैन आल्सो बी यूज्ड देयर। फॉर एग्जांपल, ही वर्कड व्हाइल अदर्स स्लेप्ट। वो काम कर रहा था जबकि बाकी सोए थे। He played while I studied. She cooked meal while her daughter washed clothes. She danced when somebody knocked at the door. Rajesh laughed when his sister wept. So these are the sentences when simultaneous actions are going on. Fourth use is to denote an action which occupied a period of time in the past which is now ended. ऐसी कोई एक्शन जो काफी दिनों से पास्ट में चल रही थी, लेकिन नाउ दैट इज नॉट गोइंग ऑन, दैट इज नाउ एंडेड। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव्ड इन शिमला फॉर 10 years, वी डू नॉट लिव देयर नाउ। ब्रैकेट में मैंने कंप्लीट कर दिया कि इसका मतलब 10 साल तक आप शिमला में रहे, बट नाउ वी डू नॉट लिव देयर। ठीक है, तो वी लिव इन शिमला फॉर 10 years। यहां पर आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्शन ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स हाउस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 weeks मीन नाउ आई एम नॉट स्टेइंग देयर, आई एम नॉट स्टेइंग विद माई फ्रेंड। ओके, you will have to remember two things, that we can use modal auxiliaries would and used to denote past customs, habitual actions in past or past routine in place of past indefinite tense। मैंने आपको पहले कहा कि आप अगर आप कस्टम्स के बारे में या हैबिट्स के बारे में बता रहे हो, कुछ भी हैबिट है आपकी, सपोज आज आप चाय नहीं पीते हो लेकिन पास्ट में पीते थे, तो आप क्या कहेंगे? आई टुक 10 cups ऑफ टी डेली लास्ट ईयर पीते थे, या व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। अब वो कस्टम्स और हैबिट्स है नहीं, तो पास्ट कस्टम्स के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए यू कैन यूज वुड एंड यूज टू मॉडल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडमदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली व्हेन शी वॉज यंग और व्हेन शी वॉज इन विलेज। यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज भी कर सकते हो। माई ग्रैंड मदर वेंट टू टेम्पल डेली व्हेन शी वॉज यंग, तो वेंट कर दोगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, माई ग्रैंड मदर वुड गो टू टेम्पल डेली व्हेन शी वॉज यंग, वो भी ठीक है। मॉडल जो है वो पास्ट हैबिट्स को बता रहा है। शी वुड गो टू टेम्पल डेली व्हेन शी वॉज यंग, तो वुड भी यूज कर सकते हो, यूज टू भी यूज कर सकते हो। या आई वुड टेक 10 cups ऑफ टी इन अ डे डेली लास्ट ईयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई यूज टू टेक 10 cups ऑफ टी, या आई टुक 10 cups ऑफ टी इन अ डे डेली लास्ट ईयर। व्हेन ही वाज इन द यूएसए ही यूज्ड टू टीच इंग्लिश लिटरेचर। तब जब वो यूएसए में था, तब वो क्या किया करता था, उसकी हैबिट क्या थी या उसकी पास्ट रूटीन क्या थी? हिज रूटीन वाज दैट ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर। तो आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे तो ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप मॉडल का यूज करते तो ही यूज टू टीच इंग्लिश। आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन ही वाज इन द यूएसए ही वुड टीच इंग्लिश लिटरेचर। तो द पर्पस ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
is also served by the use of modals like would and used to. Okay, जैसे सपोज आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप स्कूल में थे तो आप संस्कृत पढ़ा करते थे, लेकिन आजकल नहीं पढ़ते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई यूज टू स्टडी संस्कृत व्हेन आई वाज इन स्कूल. ओके, so I hope that you learned the use of past indefinite tense. Thank you. Keep learning. Stay healthy.